is me Punesh Kumar Tembre, and in today's class of design analysis of algorithms, we have to go for second part of merge sort. So as far as previous video or previous class is concerned, we have studied the first part of merge sort where we have studied part 1 merge sort, that was regarding how the merge procedure works, and as far as today's class is concerned, in second part we have to go for stepwise illustration of merge sort. So here, as per the unitization, currently we are in unit number 2, and in third part of unit number 2, we are studying one application of divide and conquer strategy, that is what a merge sort. In earlier class, we have studied that merge sort is a general purpose comparison based efficient algorithm which is given by John von Neumann in 1945. We also studied that this particular algorithm works on the basis of divide and conquer strategy, so where phase 1 is a divide phase and second phase is a conquer phase. So as far as divide phase is concerned, what we have to do? Every time we have to go for dividing the given problem into sub problem so that sub problem will be solvable for us. तो जनरली किसी भी प्रॉब्लम को हम तब तक के सब डिवाइड करते चलते हैं जब तक कि हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले. तो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला तरीका ये होता है कि जब तक हमारे सब प्रॉब्लम का साइज सिंगल इनपुट ना हो तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई डिवाइड फेज रिकर्सिवली हर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते चलेगा जब तक के सब प्रॉब्लम का इनपुट साइज सिंगल नहीं हो जाता. एंड नेक्स्ट फेज जो था दैट वाज ए कॉन्कर फेज. तो कॉन्कर फेज में जितने भी हमारे सब प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस बने हैं वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को बॉटम टू टॉप हम पैचअप करते आते हैं सो दैट हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम दिया था उसके लिए सॉल्यूशन मिल जाए. गेटिंग इट? तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्ज सॉर्ट which we have already studied in earlier class or earlier video also. Now as far as today's class is concerned, here we have to go for the merge sort. So here we have the algorithm for merge sort. So what is the algorithm? The merge sort algorithm का function call जो है, that function call will consist of merge sort APR. अब merge sort APR का मतलब क्या है? तो merge sort is a function call for merge sort. A is a given array, P is the starting index of your array and R is the last index of our array. So therefore हमारा जो जिस particular array पे हमें merge sort apply करना है वो P से लेके R तक है. So now as far as the merge sort is concerned, what we have to do? Every time we have to check for whether my problem is of single element or not. तो जब कभी भी हमें कोई array दिया हुआ रहेगा तो वो array में single element है या multiple element है. तो सिंगल एलिमेंट तब रहेंगे जब p is equals to r रहेगा. तो therefore what we have to do, every time we have to check for whether p is less than r. p is less than r का मतलब है कि if our array contain multiple elements means more than one element, और जब more than one element रहेंगे तो हमारा डिवाइड फेज वर्क करेगा. इसलिए हमें गिवन अरे को डिवाइड करना है. तो कहाँ से डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड जनरली हम करते हैं क्यू से, मींस अरे को उसके मिडल से डिवाइड करना है, और अरे को उसके मिडल से डिवाइड करते वक्त हम क्यू कैलकुलेट करेंगे p plus r by 2 एंड दिस इज व्हाट अ पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू. यानी अगर कभी आंसर आपका p plus r by 2 का आंसर अगर 4.5 अगर आ रहा है तो यू हैव टू कंसीडर इट एज 4, मींस p plus r by 2 का लोअर बाउंड आपको लेना है. तो इस तरीके से गिवन अरे सिंगल साइज का है या नहीं है हमने चेक कर लिया, और सिंगल साइज का है या नहीं है चेक करने के बाद अगर सिंगल साइज का नहीं है तो उसको भी हमने मिडल में से डिवाइड किया, और मिडल में से जब डिवाइड किया तब हमने क्यू कैलकुलेट यानी उसका मिडल पॉइंट कैलकुलेट किया. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू फॉर गिवन अरे, फिर से जो हमने दो पार्ट फाइंड आउट किए वो दोनों पार्ट पे रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को हमें कॉल करना है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला मर्ज सॉर्ट जो हमने कॉल किया है वो है p to q. क्यों? क्योंकि हमारा अरे एक्चुअली p से स्टार्ट हो रहा था, तो p से हाफ ऑफ द अरे तक, हाफ ऑफ द अरे बोले तो q. So therefore first function call will be from a p q, and next function call which we have to apply that will be from merge sort a q plus 1 to r. q plus 1 to r means next वाला हाफ. तो जनरली अगर हमारे अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स अगर है तो हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है, और मिड वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त सबसे पहला जो रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे वो फर्स्ट सब अरे पे रहेगा. तो फर्स्ट सब अरे ने लेफ्ट सब अरे उसको कह सकते हैं, तो लेफ्ट सब अरे रहेगा आपका p to q, जबकि राइट सब अरे जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम q plus 1 to r. तो दिस इज व्हाट द सूडो कोड ऑफ मर्ज सॉर्ट.
जिसमें हमने ये मर्ज सॉर्ट के भीतर रिकर्सिवली 2 बार मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, लेफ्ट सब अरे पे और राइट सब अरे पे, एंड आफ्टर दैट कॉन्कर फेज आपका स्टार्ट होगा। तो कॉन्कर फेज में प्रोसीजर जो अप्लाई करने वाले दैट इज मर्ज प्रोसीजर। तो मर्ज प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, इसका डिटेल स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन हमने अर्लियर क्लास में स्टडी किया है। आपको ये समझना है तो प्लीज मेरा अर्लियर वीडियो रेफर कीजिएगा, दैट इज रिगार्डिंग द पार्ट 1 ऑफ मर्ज सॉर्ट, जहां पे हमने स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन ऑफ मर्ज प्रोसीजर काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट। एज फार एज मर्ज सॉर्ट इज कंसर्न, हमने बोला कि मर्ज सॉर्ट जो है वो हमारा 2 फेज में वर्क करेगा। एक फेज जो रहेगा दैट इज डिवाइड फेज, और सेकंड फेज जो रहेगा दैट विल बी द कॉन्कर फेज। एज फार एज फेज 1 इज कंसर्न, जब तक आपका डिवाइड प्रोसीजर चल रहा है तब तक हम उसको डिवाइड फेज बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि P less than R then Q, then merge sort ये PQ and merge sort ये Q plus 1 to R, यानी सिंगल साइज का अरे है या नहीं ये चेक करना। अगर सिंगल साइज का नहीं है तो मिड फाइंड आउट करना, और मिड फाइंड आउट करने के बाद अरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना, P to Q and Q plus 1 to R, और दोनों पार्ट में रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को कॉल करना। दिस वी हैव टू स्टडी इन स्टेप नंबर 1 और फेज 1 व्हिच इज कॉल्ड एज डिवाइड। Whereas मर्ज सॉर्ट का सेकंड फेज जो होता है दैट इज व्हाट अ कॉन्कर फेज, और कॉन्कर फेज में हम मर्ज प्रोसीजर अप्लाई करते हैं दैट इज ये PQR। तो दिस इज अबाउट द मर्ज सॉर्ट। नाउ हाउ एग्जैक्टली योर मर्ज प्रोसीजर वर्क्स। तो मर्ज प्रोसीजर कैसे वर्क करता है इसके लिए आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको अर्लियर वाला वीडियो डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज उसको रेफर कीजिएगा। आज की क्लास में हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट। दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मर्ज प्रोसीजर का सूडोकोड हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मर्ज प्रोसीजर का सूडोकोड कुछ इस तरह का था। इस सूडोकोड को थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल में डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे था मर्ज APQR, दिस वाज द फंक्शन कॉल। हमें समराइज कर लेते हैं कि मर्ज एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा था। तो हमको N1 और N2 कैलकुलेट करना था। N1 N2 कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट सब अरे राइट सब अरे कैलकुलेट करना था, और उसके बाद लेफ्ट सब अरे में डेटा को कॉपी करना था। आफ्टर दैट राइट सब अरे में डेटा को कॉपी करना था। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेट द सेंटिनल वैल्यूज इन लेफ्ट सब अरे एज वेल एज इन राइट सब अरे, एंड आफ्टर दैट we have to copy the data from temporary subarrays to original subarray in such a way that we have to merge as well as data should be in ascending order, और उसके लिए pseudocode कुछ इस तरह का था। तो this was about the merge procedure, and now in today's class we have to go for stepwise illustration of merge sort। और stepwise illustration of merge sort स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है। तो look at this particular problem। प्रॉब्लम दिया है illustrate stepwise execution of merge sort on the following array। हमको एरे ए दिया हुआ है और इस एरे ए पे मर्ज सॉर्ट को स्टेप वाइज इलस्ट्रेट करना है। एरे ए के भीतर जो एलिमेंट दिए हैं वो एलिमेंट्स है 9, 11, 2, 7, 25, 13, 1 एंड 24। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरे जो है ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, और जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर एरे पे मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो एट द एंड हमारा एरे ए जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिलना चाहिए। और हमारा अजम्पशन ये है कि हम यहाँ पे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम स्टडी करेंगे कि मर्ज सॉर्ट यूज करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कैसे सॉर्ट करें। तो जब कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम दिया और उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले तो हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम लिखते वक्त मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम डिवाइड फेज एंड कॉन्कर फेज ऐसे 2 फेज रहेंगे, और डिवाइड फेज के भीतर आपका जो लाइन कोड रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। If P less than R, then P will be equals to P plus R by 2, merge sort ये PQ, merge sort ये Q plus 1 to R। और सेकंड फेज जो रहेगा that will be the conquer phase, जहाँ पे हमें merge A, P, Q, R इस पर्टिकुलर कोड को रन कराना है। तो नाउ स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन परफॉर्म करते वक्त हम 1 by 1 देखेंगे। तो हियर वी हैव फेज 1। फेज 1 जो है वो है हमारा डिवाइड फेज, आप यहाँ देख सकते हैं फेज 1 इज योर डिवाइड फेज। और अभी हम डिवाइड फेज अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड फेज जब अप्लाई करेंगे तो डिवाइड फेज का सूडोकोड हमने देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज व्हाट द कोड फॉर डिवाइड फेज। डिवाइड फेज का कोड है ये P less than R then Q is equals to P plus R by 2, और 2 बार रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को कॉल किया लेफ्ट सब अरे पे और राइट सब अरे पे। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। अगर हमारा एरे दिया है 1 से लेके 8 तक, क्यों? क्योंकि हमारे गिवन एरे में टोटल एलिमेंट्स है 8, और इसलिए हमारा P जो बनेगा that will be the starting index, it will be equals to 1।
और r जो बनेगा दैट विल बी द लास्ट इंडेक्स दैट विल बी इक्वल टू द 8। इसलिए फंक्शन कॉल जो कॉल होगा दैट विल बी मर्ज सॉर्ट APR, और हमारा अरे 1 से लेके 8 तक है, इसलिए पहला फंक्शन जो रहेगा, पहला फंक्शन कॉल जो रहेगा फॉर मर्ज सॉर्ट दैट विल बी मर्ज सॉर्ट A18। अब इसके लिए जब हम कोड रन कराएंगे तो कोड किस तरह का रहेगा, तो मर्ज सॉर्ट के लिए डिवाइड फेज में जो कोड होता है वो होता है p लेस देन r, देन q विल बी इक्वल टू p प्लस r बाय 2, और फर्स्ट सब अरे पे मर्ज सॉर्ट एक बार कॉल करना है, और सेकंड वाला सब अरे यानी जो राइट वाला सब अरे रहेगा उस पे मर्ज सॉर्ट एक बार कॉल करना है। तो इसी को हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये p लेस देन r, तो व्हाट इज p, p इज 1, दैट्स व्हाई p की जगह हमने लिखा है 1 एंड r इज 8। तो p इज लेस देन r का मतलब ये 1 इज लेस देन 8 है क्या, नहीं, ये कंडीशन p इज लेस देन r है क्या, s, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 8, और ये कंडीशन तब तक ट्रू होगा जब तक कि आपके अरे में मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपके गिवन अरे में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू आना ही है, और ये कंडीशन अगर ट्रू आना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अरे को डिवाइड करना पड़ेगा। और अरे को डिवाइड कहाँ से करना है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों, तो q विल बी इक्वल टू p प्लस r बाय 2, यानी अरे को आपको अरे के एग्जैक्ट मिडल से डिवाइड करना है। तो देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्यूट 1 प्लस 8 बाय 2, इसलिए आप देख सकते हैं 1 प्लस 8 बाय 2, तो हियर q कम्स आउट 4.5, और हमने बोला था q में लोअर बाउंड वैल्यू लेते हैं, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इसलिए 4.5 का इंटीजर कितना रहेगा 4, देयरफॉर q विल बी इक्वल टू 4। और अभी हमारा अरे जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कहां से कहां तक, p से लेके q तक और q प्लस 1 से लेके r तक, इसलिए आप यहाँ पे दो पार्ट में आपको अरे को बटा हुआ देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है ये है p से लेके q तक, व्हाट वाज p वाज 1 एंड व्हाट इज q इज वी हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ दैट इज 4, इसलिए q विल बी इक्वल टू 4। तो 1 टू 4, तो 1 टू 4 वाले एलिमेंट्स कौन से, 9 11 2 7, ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट, जबकि सेकंड पार्ट जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम q प्लस 1 टू r, तो q प्लस 1 यानी कितना होगा 4 प्लस 1 5, इसलिए 5 से लेके 8 तक दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ योर अरे। तो लेफ्ट सब पार्ट जो बना यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, और राइट सब अरे आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज फ्रॉम 25 टू 24। तो 9 11 2 7 ये चार एलिमेंट्स आ गए आपके लेफ्ट सब अरे में, जबकि 25 13 1 एंड 24 ये वाले एलिमेंट्स आ गए आपके राइट सब अरे में। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिकर्सिवली अप्लाई मर्ज सॉर्ट टू टाइम्स। पहला रहेगा p टू q यानी मर्ज सॉर्ट 1 टू 4, इसलिए आप देख सकते हैं मर्ज सॉर्ट ये 1 टू 4, और सेकंड फंक्शन कॉल जो रहेगा दैट विल बी मर्ज सॉर्ट ये q प्लस 1 टू r। तो मर्ज सॉर्ट ये q प्लस 1 बोले तो 5 टू r दैट इज 8। तो अभी हम सॉल्व कर रहे थे मर्ज सॉर्ट ये 1 8, तो मर्ज सॉर्ट ये 1 8 के भीतर रिकर्सिव फंक्शन कॉल परफॉर्म किया गया टू टाइम्स, पहला फॉर मर्ज सॉर्ट ये 1 4 एंड सेकंड फॉर मर्ज सॉर्ट ये 1 8। तो दिस इज व्हाट लेवल 1 में हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट का अरे दिया हुआ था, उसको हमने लेवल 1 में डिवाइड करके दो सब अरे में डिवाइड कर दिया, जबकि दोनों सब अरे का साइज जो है अभी वो रिड्यूस हो गया बाय 50%, यानी पहले 8 थे तो 8 इनपुट के साथ एक सिंगल प्रॉब्लम था, अभी 8 इनपुट के साथ सिंगल सब प्रॉब्लम के दो डिवीजन हो गए, यानी दो सब प्रॉब्लम्स हो गए, पहला सब प्रॉब्लम और दूसरा सब प्रॉब्लम, दोनों का साइज इनपुट साइज जो है वो एक्चुअल साइज से हाफ से रिड्यूस हो गया, इसलिए यहाँ पे 4 का हो गया, यहाँ पे 4 का हो गया। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व मर्ज सॉर्ट A14 and merge sort A58 at second level. So now we have to go for once again phase 1, क्योंकि अभी हमारा डिवाइड फेज ही चल रहा है, तो now we have to go to level 2। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2, लेवल 2 में हमें मर्ज सॉर्ट A14 यानी लेफ्ट सब अरे को अलग से सॉल्व करना है, और मर्ज सॉर्ट A58 यानी राइट सब अरे को अलग से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल था, only we have to first check for single element or multiple element. If multiple elements are there, then we have to find out the mean. मीट फाइंड आउट करने के बाद अरे को दो पार्ट में डिवाइड करना था, लेफ्ट सब अरे के लिए एक बार मर्ज सॉर्ट कॉल करना है, राइट सब अरे के लिए एक बार फिर से मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है। तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लुक फॉर सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट। कंडीशन क्या था, p लेस देन और नॉट, तो p कितना है 1 और r कितना है, r मींस यहाँ पे भी हमारा q हो गया, तो r मींस q दैट इज 4। तो वेदर 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 4 कंडीशन हमारा ट्रू है,
और ट्रू होने की वजह से हम मिड फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 1 + 4/2, दैट विल बी इक्वल टू 2.5, और 2.5 का इंटीजर वैल्यू जो बनेगा दैट विल बी 2। इसलिए अभी हमारा अरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक के और 2 + 1 से लेके 4 तक के। इसलिए आप देख सकते हैं मर्ज सॉर्ट को दो बार कॉल किया, मर्ज सॉर्ट A12 एंड मर्ज सॉर्ट A34। इसलिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया दैट इज 9 एंड 11, क्यों? क्योंकि 1 और 2, और सेकंड पार्ट जो होगा दैट विल बी फॉर 3 4 दैट इज 2 एंड 7 3 4। तो सिंगल सब प्रॉब्लम जो था वो 4 एलिमेंट का था। उसके फर्दर नेक्स्ट लेवल यानी लेवल 2 से लेवल 3 पे दो सब प्रॉब्लम्स बने, जबकि दोनों सब प्रॉब्लम का साइज हाफ से रिड्यूस हो गया, यानी पहले 4 था तो अभी दो दो एलिमेंट के आपके पास दो अलग अलग अरे बन गए। तो दिस वाज फॉर मर्ज सॉर्ट A14। वैसा ही हमें सॉल्व करना है मर्ज सॉर्ट A58। अब मर्ज सॉर्ट A58 को पहले ही चेक करना पड़ेगा वेदर 5 इज लेस देन या यस, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स है। मल्टीपल एलिमेंट्स है तो हमको मिड फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड दैट इज q, q विल बी इक्वल टू 5 + 8/2 दैट इज 6.5, उसका इंटीजर वैल्यू रहेगा 6। और अभी हमें मर्ज सॉर्ट कॉल करना पड़ेगा फ्रॉम 5 to 6, यानी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके मिड तक के, देयरफॉर मर्ज सॉर्ट 5 to 6 और मिड प्लस 1 यानी 7 से लेके लास्ट वाले इंडेक्स तक, दैट इज इट। तो अभी आप देख सकते हैं मर्ज सॉर्ट A58 ने रिकर्सिवली दो मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल किया है, वो है मर्ज सॉर्ट A56 एंड मर्ज सॉर्ट A78। और ग्राफिकली अगर हमें देखना है तो ग्राफिकली देखते वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल प्रॉब्लम था जिसमें 4 एलिमेंट्स थे, उसके दो सब प्रॉब्लम बने और दोनों सब प्रॉब्लम में डबल डबल एलिमेंट्स है, यानी दो दो एलिमेंट्स है। तो 25 13 का एक पार्ट बन गया, जबकि 1 और 14 जो था हमारा, 1 और 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 और 14 का जो था ये सेकंड पार्ट बन गया। तो अभी लेवल 2 में दो सब प्रॉब्लम के अभी कितने सब प्रॉब्लम बन गए हमारे पास? 4। तो एक्चुअली लेवल 1 में हमारे पास सिंगल सब प्रॉब्लम था, उसके दो सब प्रॉब्लम बने, इनपुट साइज लेवल 1 में 8 था, लेवल 2 में इनपुट साइज हो गया 4, लेकिन सब प्रॉब्लम्स कितने हो गए? 2। लेवल 2 को जब हमने लेवल 2 पे जब हमने डिवाइड किया तो लेवल 3 में, लेवल 2 में हमारे पास दो सब प्रॉब्लम्स थे, दो सब प्रॉब्लम्स थे, टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स बन गए, और ये चारों सब प्रॉब्लम्स का साइज कितने का था? 2 2 का था। नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल डिवाइड, यानी फिर से फेज 1, एंड वी हैव टू गो फॉर हाउ टू परफॉर्म डिवाइड एट लेवल 3। तो हियर डिवाइड एट लेवल 3 हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे पास लेवल 3 में टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स है, और चारों सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है दैट इज व्हाट मर्ज सॉर्ट A12, सेकंड मर्ज सॉर्ट A34, थर्ड है मर्ज सॉर्ट A56 और चौथा है मर्ज सॉर्ट A7। तो अब ये चारों फंक्शन कॉल्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और चारों फंक्शन कॉल जब हम परफॉर्म करेंगे तब ऑटोमेटिकली लेवल 3 में फिर से ये सब प्रॉब्लम डिवाइड होंगे, क्यों? क्योंकि हम फेज 1 डिवाइड फेज में, तो हम 1 by 1 स्टडी करेंगे इनको। तो पहला जो है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 थे तो 4 में से हमने इसको लिया है। पहले तो मर्ज सॉर्ट A12 और मर्ज सॉर्ट A34 इनको देख लेते हैं। तो पहला है मर्ज सॉर्ट A12। तो मर्ज सॉर्ट A12 में वेदर 1 इज लेस देन 2, यस, और 1 इज लेस देन 2 है, इसलिए फिर से हम सब डिवाइड करेंगे। तो सब डिवाइड कहाँ से करेंगे? तो मिड फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1 + 2 का मिड जो होगा दैट विल बी 3/2 दैट इज 1.5। 1.5 का इंटीजर वैल्यू रहेगा 1, इसलिए 1 पे वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका अरे दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 1 to 1 एंड 1 + 1 मींस 2 to 2। इसलिए मर्ज सॉर्ट दो बार कॉल करना पड़ेगा, A11 एंड मर्ज सॉर्ट A22। तो दैट्स व्हाई ग्राफिकली आप देख सकते हैं लेवल 3 पे हमारे पास एक सिंगल प्रॉब्लम था। वैसे हमारे पास टोटल 4 है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सब प्रॉब्लम है जिसका साइज है 2। ये सिंगल सब प्रॉब्लम जिसका साइज 2 था उसको हमने दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो है अभी सिंगल। दिस वाज फॉर फर्स्ट सब प्रॉब्लम एट लेवल 3। ऐसे टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स थे। तो सेकंड सब प्रॉब्लम जो है वो है मर्ज सॉर्ट A34। यहाँ पे फिर से वेदर 3 इज लेस देन 4, हाँ ट्रू है, ट्रू है तो मिड फाइंड आउट करो। 3 + 4/2 दैट इज 3.5 दैट विल बी इक्वल टू 3। तो आपका प्रॉब्लम जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, A33 एंड A44। तो इसलिए आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल सब प्रॉब्लम जिसका साइज 2 था विल गेट डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 सब प्रॉब्लम्स
जबकि साइज क्या रहेगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 का आधा 1। तो देयरफॉर एट लेवल 3 अगर हम देखेंगे तो लेवल 3 में हमारे पास टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स थे, और चारों सब प्रॉब्लम्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 का आधा आधा, यानी एक प्रॉब्लम के 2 हो जाएंगे, तो टोटल 4 है तो 4 के 8 सब प्रॉब्लम बन जाएंगे, और आठों सब प्रॉब्लम का साइज जो रहेगा दैट विल गेट रिड्यूस बाय 50%। तो यहाँ पे हमारा इनपुट साइज 2 था, तो वहां पे इनपुट साइज हमारा 1 रहेगा। तो चारों सब प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखेगा। तो बचे हुए हमारे जो 2 प्रॉब्लम्स थे, मर्ज सॉर्ट ये 5-6 एंड मर्ज सॉर्ट ये 7-8, इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद फिर से सिंगल सिंगल साइज के हमारे पास टोटल 2 सब प्रॉब्लम्स और यहाँ पे 2 सब प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। इस तरह से टोटल 8 सब प्रॉब्लम्स हमारे पास मिल गए। एंड नाउ अगर हम कंप्लीट सिनेरियो देखते हैं तो कंप्लीट सिनेरियो विल लुक लाइक दिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली इनिशियली हमें एक सिंगल सब प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसका साइज है ये। फिर हम लेवल 1 पे गए, लेवल 1 पे जब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद एक प्रॉब्लम के 2 सब प्रॉब्लम बने और इनपुट साइज 50% से रिड्यूस हो गया, यानी 8 का 50% बोले तो 4 इसलिए आप देख सकते हैं पहले इनपुट साइज 8 था, अभी 2 सब प्रॉब्लम्स हो गए और इनपुट साइज कितना हो गया 4। तो दिस इज व्हाट डिवाइड एज लेवल 1। फिर हमने इंडिविजुअली ये दोनों प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दोनों सब प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व किया तो ये सब प्रॉब्लम फिर से 2 प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गया और ये भी सब प्रॉब्लम दोनों सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गया और इनपुट साइज रिड्यूस हो गया 50% से। तो अभी इनपुट साइज कितना बनेगा, 4 का 50% दैट इज 2। तो देयरफॉर अगर हम लेवल 3 में अगर देखते हैं तो लेवल 3 में हमारे पास टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स है, जबकि इनपुट साइज कितना है 2। बाद में इनको फिर से हम लेवल 3 पे डिकम्पोज किया या डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद फिर से ये प्रॉब्लम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इनिशियली 4 थे तो 4 के 8 हो जाएंगे और हर एक प्रॉब्लम का साइज जो हो गया अभी वो 1 हो गया। अब इसके आगे फर्दर डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आप लेवल 4 पे यहाँ पे देख सकते हैं, लेवल 4 पे मेरे पास टोटल 8 सब प्रॉब्लम्स है और 8 सब प्रॉब्लम का इनपुट साइज जो है वो है 1। तो वन इनपुट साइज के साथ प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाउ डिवाइड फिच का काम यही होता है कि प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते चलो जब तक कि आप उसको सॉल्व ना करें। अब प्रॉब्लम को कब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इनपुट साइज जब सिंगल हो जाता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम उस मुकाम पे आ गए, उस पर्टिकुलर लेवल पे आ गए कि किसी भी सब प्रॉब्लम फर्दर सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाई नाउ वी आर कैपेबल टू सॉल्व दिस 8 सब प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली। तो अभी ये आठों के आठों सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो फेज 1 के कंप्लीट सिनेरियो में फंक्शन कॉल की अगर मैं बात करूंगा तो एक्चुअली मर्ज सॉर्ट A18 वाज माय इनिशियल फंक्शन, और मर्ज सॉर्ट A18 के भीतर 2 बार रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को कॉल किया था, मर्ज सॉर्ट A14 एंड मर्ज सॉर्ट A58। फिर A14 के भीतर अगर आप देखोगे तो A12 और A34 को हमने कॉल किया था, और A12 को अगर हम देखते तो A12 के भीतर मर्ज सॉर्ट A11 और A22 को कॉल किया था। तो दिस इज व्हाट द एंटायर ट्री फॉर फंक्शन कॉल। तो जो रिकर्सिव कॉल की जो अगर हमने ट्री बनाते तो ट्री कुछ इस तरह से था। तो लेवल 1 में हमारे पास, लेवल 0 में हमारे पास एक ही फंक्शन कॉल है, लेवल 2 में हमारे पास 2 फंक्शन कॉल है, लेवल 3 में हमारे पास 4 फंक्शन कॉल है, और लेवल 4 में हमारे पास टोटल 8 फंक्शन कॉल है। तो कोई भी फंक्शन कॉल का मतलब है कि कितने प्रॉब्लम्स आपके पास है। तो लेवल 4 में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो टोटल मेरे पास 8 सब प्रॉब्लम्स है, और जबकि हर सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो सिंगल है। नाउ वी हैव टू गो फॉर अ कॉन्कर फिश। अब कॉन्कर फिश एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, तो कॉन्कर फिश का काम क्या था, कॉन्कर फिश का काम है मर्ज प्रोसीजर को अप्लाई करना। मर्ज प्रोसीजर क्या करता था, एक लेफ्ट सब अरे लेता था और एक राइट सब अरे लेता था, और दोनों सब अरे को अभी वो असेंडिंग ऑर्डर में, या जो भी हम ऑर्डर स्पेसिफाई करेंगे, अगर हम बोल रहे हैं असेंडिंग तो असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज करा के फाइनल आउटपुट जनरेट कराएगा, और ये रिकर्सिवली बॉटम अप फैशन से हम परफॉर्म करते थे। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने डिवाइड किया है उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में यानी रिवर्स ऑर्डर में हमें कॉन्कर करना पड़ेगा। तो यार कॉन्कर प्रोसीजर में हमें मर्ज प्रोसीजर अप्लाई करना था। तो मर्ज प्रोसीजर का सूडो कोड एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। मर्ज प्रोसीजर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास 2 पार्टीशन किए हुए सब अरे होने चाहिए,
और उनको हम टेम्पररी सब अरेज में कॉपी करते हैं और टेम्पररी सब अरे से डेटा फिर सॉर्टेड ऑर्डर में एक्चुअल अरे में हम कॉपी करते हैं। इस तरह का मैकेनिज्म हमने मर्ज प्रोसीजर में देखा था। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे का साइज कैलकुलेट करना होता था। सेकंड, आपको लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे बनाना होता था और फिर लेफ्ट सब अरे में डेटा को कॉपी करना होता था, फिर राइट सब अरे में डेटा को कॉपी करना होता था, फिर लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे दोनों के लिए सेंटिनल वैल्यू सेट करनी पड़ती थी, एंड फाइनली फिर हमारा जो टेम्पररी सब अरे है लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों में से हमारे एक्चुअल अरे में डेटा कॉपी करना पड़ता था ताकि मर्जिंग भी हो सके और डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो सके। तो उसका सूडोकोड कुछ इस तरीके से था। गेटिंग इट? तो ये चीज समझने के लिए आपको अर्लियर वाला वीडियो रेफर करना पड़ेगा। एंड नाउ जो भी स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे थे वही उन्हीं को एब्रीवेट तरीके से हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 इस तरीके से लिखा है। पहले स्टेप में लेफ्ट और राइट सब अरे का साइज कैलकुलेट किया, फिर अरेज को क्रिएट कर लिया, फिर डेटा कॉपी कर लिया, फिर इंटरनल वैल्यू सेट कर दी और फिर बाद में मर्जिंग कर दिया। तो दिस इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ हाउ मर्ज प्रोसीजर वर्क्स। एंड रिगार्डिंग अभी हम क्वानकर फेज को स्टडी करेंगे। तो क्वानकर फेज का मतलब क्या था कि जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने डेटा को स्प्लिट किया उसी पर्टिकुलर रिवर्स ऑर्डर में आपको डेटा को क्या करना है, मर्ज करना है, लेकिन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए लेवल 4 में अगर हम देखते हैं तो लेवल 4 में हमारे पास टोटल 8 सब प्रॉब्लम्स थे और 8 सब प्रॉब्लम्स को भी मर्ज करना है हमको लेवल 3 में। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वी आर इन फेज नंबर 2 दैट इज अ क्वानकर फेज, और लेवल 3 पे हम मर्जिंग कैसे परफॉर्म करेंगे ताकि लेवल 4 से लेवल 3 में हम कैसे आ सके। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास टोटल 8 सब प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 ऐसे 8 सब प्रॉब्लम्स है। तो ये 8 सब प्रॉब्लम्स को भी हमें मर्ज करना है। तो मर्ज कराने के लिए जो प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो रहेगा मर्ज एपीक्यूआर। तो हियर पहला फंक्शन कॉल जो रहेगा दैट विल बी मर्ज A112। तो मर्ज A112 दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन कॉल। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में डिवाइड हुआ है उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको अभी कॉन्कर भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरा अरे 1 और 2 ऐसा अरे था, तो 1 2 को 1 1 और 2 2 ऐसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो उसी के रिवर्स ऑर्डर में भी हमें मर्ज करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंगल सब प्रॉब्लम 9 का है और सेकंड सब प्रॉब्लम 11 का, ये दोनों को भी मर्ज करना है। तो ये दोनों अरे को हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज करते वक्त मर्ज प्रोसीजर का एग्जैक्ट काम क्या है? मर्ज करते वक्त मर्ज प्रोसीजर का एग्जैक्ट काम ये है कि ये दोनों अरे को कॉपी करो और इस तरीके से मर्ज करो ताकि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो सके। तो 9 और 11 इनमें से स्मॉल कौन है? 9, इसलिए 9 पहले आएगा और बाद में कौन आएगा? 11। एक्चुअली मैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बोल रहा हूँ, बट इन रियलिटी क्या होगा? इन रियलिटी सबसे पहले तो n1 बनाना पड़ेगा, फिर n2 बनाना पड़ेगा, फिर ये 9 को कॉपी करना पड़ेगा लेफ्ट सब अरे में, फिर 11 को कॉपी करना पड़ेगा राइट सब अरे में, फिर सेंटिनल वैल्यू सेट करने पड़ेंगे और फिर वो दोनों लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे से एक्चुअल अरे में डेटा कॉपी करना पड़ेगा। इस तरह का ये प्रोसीजर होता है, बट उतना डिटेल में अभी हमें यहाँ स्टडी नहीं करना है, उसके लिए आपको अर्लियर वीडियो रेफर करना पड़ेगा। गेटिंग इट? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम बोल रहे हैं कि मर्ज प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। तो कैसे वर्क करेगा? 9 और 11 ऐसे दो अलग अलग मेरे पास दो सब अरे दिए हुए, इनको वो कैसे कॉपी करेगा? तो असेंडिंग ऑर्डर में कॉपी करके सबसे पहले 9 आ जाएगा और फिर बाद में कौन आ जाएगा? 11। तो इस तरह से दो सब प्रॉब्लम को मैंने, दो सब सॉल्यूशंस मेरे पास जो थे, ये दो सब सॉल्यूशंस को पैचअप करके एक सिंगल सॉल्यूशन बना दिया, जबकि ये सिंगल सॉल्यूशन अभी सॉर्टेड ऑर्डर। तो ओनली 9 ओनली 11 ऑलरेडी सॉर्टेड था और अभी 9 11 कैसा है? सॉर्टेड है। वैसे ही बाकी सारे सब प्रॉब्लम्स के लिए हमने अप्लाई किया। तो जैसे 2 और 7, तो 2 और 7 को सॉर्टेड ऑर्डर में जब कॉपी करेंगे तो 2 7 कॉपी हो जाएगा। 25 13 में तो 13 पहले आ जाएगा, बाद में 25 आ जाएगा, और 124 में पहले 1 आ जाएगा, बाद में 24 आ जाएगा। तो क्वानकर क्विज में एट लेवल 3 नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशन आई एम? मेरे पास टोटल 4 सॉल्यूशन। लेवल 4 में मेरे पास 8 सॉल्यूशंस थे, लेवल 3 में अभी मेरे पास टोटल 4 सॉल्यूशंस है। तो आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट माय सॉल्यूशन 1, solution 2, solution 3 and solution 4. Now we have to go to how to perform conquer at level 2. तो अभी हम लेवल 2 पे जाएंगे। तो लेवल 2 पे कॉन्कर कैसे परफॉर्म करेंगे? तो लेवल 2 पे कॉन्कर परफॉर्म करने के लिए लेवल 3 में जो भी आपके पास सॉल्यूशंस था वो सॉल्यूशंस को भी आपको पैचअप करना पड़ेगा। तो लेवल 3 में मेरे पास 4 सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन 1 2 3 एंड 4।
अब इनको पैचअप जब कर रहे हैं हम, तो पैचअप करते वक्त आप देख सकते हैं कि लेवल 2 और लेवल 3 में जब हमने पैचअप किया था तो हमारे पास टोटल 4 सॉल्यूशंस थे। ये 4 को अभी पैचअप करके हमको 2 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ताकि हम लेवल 2 पे 2 सॉल्यूशंस बना सके। तो 9-11 सॉर्टेड प्रॉब्लम है, 2-7 ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट है। अब ये दोनों को हमें मर्ज कराना है, तो मर्ज कराते वक्त क्या करेंगे, फिर से लेफ्ट सब अरे बनाएंगे, राइट सब अरे बनाएंगे। 9-11 को लेफ्ट सब अरे में कॉपी करेंगे, 2-7 को राइट सब अरे में कॉपी करेंगे और फिर वहां से डेटा आपके एक्चुअल अरे में कॉपी करेंगे। तो एक्चुअल अरे में कॉपी करते हैं, पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, एक पॉइंटर रहेगा 9 पे और एक पॉइंटर रहेगा 2 पे। तो 9 और 2 दोनों में से स्मॉल कौन है, 2, इसलिए 2 कॉपी हो गया। और अभी 2 का पॉइंट, यहाँ का पॉइंटर आगे बढ़ गया, वैसे यहाँ का पॉइंटर आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ने के बाद अभी 9 और 7 दोनों में से स्मॉल कौन है, 7, इसलिए 7 विल गेट कॉपी। फिर पॉइंटर रहेगा यहाँ पे और यहाँ चले जाएगा वो इन्फिनिटी यानी सेंटिनल वैल्यू पे। तो 9 और इन्फिनिटी में से स्मॉल कौन है, 9, इसलिए 9 विल गेट कॉपी, लास्ट में 11 विल गेट कॉपी। गेटिंग इट? ये चीज को समझने के लिए थोड़ा अर्लियर वीडियो आपको रेफर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉब्लम, दो सब सॉल्यूशन से हमको एक सिंगल सब सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज 2, 7, 9, 11। वैसा ही 13, 25, 1 एंड 24, इनमें से स्मॉल कौन है, सबसे पहले 1, इसलिए 1 आएगा, फिर 13 आएगा, 1 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 24 आएगा और फिर 25 आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं एट लेवल 2 मेरे पास 2 सब सॉल्यूशंस है। गेटिंग इट? दिस इज व्हाट अ वन सब सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट अ सेकंड सब सॉल्यूशन। अब ये दोनों सब सॉल्यूशंस को यूज करके, नेक्स्ट लेवल पे मुझे सिंगल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव टू गो टू लेवल 1। तो दिस इज व्हाट अ कॉन्कर एट लेवल 1। अब कॉन्कर एट लेवल 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका साइज है 4, ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसका साइज है 4। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा। और अभी हमें क्या करना है, इससे एक्चुअल सॉल्यूशन बनाना है और एक्चुअल सॉल्यूशन बनाते हो मर्जिंग करना पड़ेगा। तो 2 और 1 में से स्मॉल कौन है, 1, देयरफॉर 1 विल गेट कॉपीड और 1 का पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पॉइंटर है 2 पे, यहाँ पे रहेगा 13 पे, तो 2 और 13 में से स्मॉल कौन है, 2, इसलिए 2 आ जाएगा। गेटिंग इट? तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे पास सॉर्टेड अरे जो बनेगा वो बन जाएगा 1, 2, 7, 9, 11, 13, 24 एंड 25। तो इन दिस वे वी गॉट द सॉर्टेड अरे। तो फाइनली हम देख लेते हैं कि फेज 2 का कंप्लीट सिनेरियो क्या था। तो फेज 2 के कंप्लीट सिनेरियो में लेवल 3 में मेरे पास में 4 बार मुझे मर्जिंग परफॉर्म करना, और ये मर्जिंग है मर्ज A112, क्योंकि इसने क्या किया, 2 सब प्रॉब्लम्स को मर्ज किया, इसने 2 सब प्रॉब्लम्स को मर्ज किया, यहाँ पे 2 सब प्रॉब्लम को मर्ज किया, यहाँ पे 2 सब प्रॉब्लम्स को मर्ज किया। तो टोटल एक्चुअल हमारे पास 8 सब प्रॉब्लम्स थे। 8 सब प्रॉब्लम्स को हमने 8 सब सॉल्यूशंस थे उनको 4 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट लेवल पे 2 सॉल्यूशंस में कन्वर्ट किया और फाइनली सिंगल सॉल्यूशन पे कन्वर्ट किया। तो एक्चुअली मर्ज प्रोसीजर को किस तरीके से कॉल किया था, वो कॉल को दिखाने वाला ये कंप्लीट सिनेरियो है। एंड नाउ फाइनली अगर हम देखते हैं तो फाइनली हमारे पास एक्चुअल अरे जो था वो था 9, 11, 2, 7, 25, 13, 1, 24, ऐसा 8 एलिमेंट वाला एक सिंगल अरे था। और इस सिंगल अरे पे हमने फंक्शन कॉल अप्लाई किया था A18। तो A18 इस फंक्शन कॉल ने हमेशा चेक किया उसके भीतर सिंगल एलिमेंट है या मल्टीपल एलिमेंट है, और वो डिवाइड फेज में चले गया। जब डिवाइड फेज में गया, जब जब उसको मल्टीपल एलिमेंट्स मिले तो उसने रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, और रिकर्सिवली 2 बार मर्ज सॉर्ट कॉल करने से पहले उसने क्यू फाइंड आउट किया। क्यू कैसे फाइंड आउट किया था, p प्लस क्यू बाई 2 का लोअर बाउंड वाला वैल्यू। एंड आफ्टर दैट उन्होंने अरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया, p टू q एंड q प्लस 1 टू r, और 2 बार मर्ज सॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करते चले गए। ये कंटिन्यूसली चलते गया जब तक कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का साइज सिंगल नहीं हो जाता। तो सिंगल साइज के प्रॉब्लम जब हमको मिल गए, फिर हमने एग्जैक्टली सेम रिवर्स ऑर्डर में मर्ज प्रोसीजर को अप्लाई किया एंड फाइनली वी गॉट दिस पर्टिकुलर अरे। तो अभी आप देख सकते हैं एक्चुअल अरे हमारा कुछ इस तरह का था और फाइनल अरे हमारा कुछ इस तरह का है। तो फाइनल अरे अगर आप देखते हो जो कि हमें यहाँ मिला था, ये वाला फाइनल अरे है 1, 2, 7, 9, 11। ये कब मिला, जब फाइनल मर्ज प्रोसीजर A148 हमने अप्लाई किया। तो आफ्टर अप्लाइंग फाइनल प्रोसीजर A148 हमारा अरे है 1, 2, 7, 9, 11, 13, 24 एंड 25। तो इन दिस में वी गॉट फाइनली merged array, that is a sorted array. And now here we have one assignment problem for you.
So here it is asked, illustrate stepwise execution of merge sort on the following array. और array A दिया है A1 17 11 9 4 10 and 49. तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका array sorted नहीं है, unsorted array है. आपको इसको ascending order में sort करते हुए इसका stepwise illustration देना है. तो दिस वाज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट. तो मर्ज सॉर्ट के बारे में हमको याद रखने वाली चीजें यही है कि मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी बेस्ड एल्गोरिथम है. मर्ज सॉर्ट दो फेज में वर्क करता है, डिवाइड फेज एंड कॉन्कर फेज. डिवाइड फेज कैसे वर्क करेगा? इफ p is less than q, then we have to compute q will be equals to p plus r by 2, and repeatedly recursively we have to call two times merge sort. पहला merge sort रहेगा merge sort a p to q, और सेकंड merge sort रहेगा merge sort a q plus 1 to r. और फिर बाद में ये दोनों को हमें मर्ज करना पड़ेगा, इसलिए प्रोसीजर लगाना पड़ेगा merge a p q r. So this is all about stepwise illustration of merge sort. Thank you.